the right, so let's get started with the 11th lecture on mathematics for machine learning. हम अभी basically अपने जिस module में हैं इसका नाम है linear algebra, right? Or we are covering topics that will make it much easier for us to discuss very different kinds of machine learning algorithms. जब हम बात करेंगे hyperplane classifying, right, जो बाउंड्री बनेगा बिटवीन टू क्लासेस ऑफ डेटा, तो आपको बेहतर समझ आएगा हाइपर प्लेन और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फाइन है नहीं है व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दीज आइडियाज़, राइट. तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ. वैसे भी आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मॉड्यूल इन द कोर्स इन द सेंस दैट आपकी टेक्स्ट बुक में भी इट्स द बिगेस्ट चैप्टर, आई थिंक एटलीस्ट जो मैथ का सेक्शन है ना उसमें. So, but it's good, I think it builds the foundations. और अगर इसमें जितना कुछ हम कर रहे हैं ना ये आपको अगर समझ आ जाए तो फिर until probability जो आगे sections हैं which are analytical geometry, vector calculus, matrix decomposition, वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. I can just tell them कि आपने already basis chain देख लिया है, अब ये हम eigen basis use करेंगे, that's it, right. मतलब वो बहुत तेज़ी से गुजरेगा. So that's why I'm taking time on this. Linear algebra. We have been talking about vector spaces, so let's recap very quickly. Here's the story so far, yeah, told by a student who only saw the fun slides, yeah. So we talked about the poetry of maths. Mathematics defines its objects and places and their rules of interaction. We saw the multiverse of mathematics where you create these universes, you define your objects and their laws, and in there we were interested in a very particular structure, the algebraic structures, yeah. And what were the algebraic structures? Basically they were some set with some operators and some axioms, yeah. Each selection led to a different kind of algebraic structure. And we said, okay, one algebraic structure that we were interested in was vector space, but before going into vector space we had to get its background, which was systems of equations. वहीं से कहानी शुरू होती है, yeah. So we looked at those in details, and then we came back to vector space and we said, okay, this is where linear algebra basically lives with some rules. And then we looked at sub part of that, the subspace, राइट. अब ये सब स्पेस लफ्ज़ आप बहुत सुनेंगे तो आपके जहन में एक बहुत इंटीमेट सा मीनिंग उसका होना चाहिए क्लैरिटी के साथ, राइट. तो वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट इन डिटेल. एंड spaces and subspaces, when we want to represent them, these guys are the key bases, yeah. They are the ones that help us really एक किस्म आप सुनते हैं निचोड़ निकालना. पूरी स्पेस है, या इन्फिनिट वेक्टर्स उसके अंदर फिट हो रहे हैं और आप कहते हैं ये तीन है, ये सारों को रिप्रेजेंट कर देंगे. दैट्स ह्यूज, राइट. देन यू कैन डू सो मच विद दैट, और यही हम करते हैं, या. सो दैट इज़ द पावर ऑफ बेसिस. We saw bases in Fouriers and we saw, okay, and this is where we were. Subspace हो गई, सब कुछ हो गया. Now we want to morph or transform one space into another one. So if we apply some sort of operation or a function on a vector space, what happens to it? And is the output also a vector space? And this is this guy told us, okay, vector transformation, it's not that easy to go into, but let's first pose the questions. It's basically changing one vector space to possibly another. क्यों possibly, क्यों? और कब नहीं होगी? जब उसकी प्रॉपर्टीज फेल हो जाएंगी. तो इट माइट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो वो फेल हो जाएगी, फिर won't be a vector space. So actually we will see today that we will be interested mostly in those transformations which preserve important structural properties, and we'll call them linear transformations, yeah. So जो हमने
we saw an example last time. We had to find the 100th power of a matrix, if you remember, and we converted it into a diagonal matrix. That was a transformation. जैसे भी हुई वो थोड़ा सा मैंने idea दिया था, but we want to have that power generally in our hand कि जी कैसे ये use हो सकता है. So the questions ये मैंने last time show किया था, इसलिए मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ इसमें. This is basically where we stopped. The questions we could ask when there is a transformation of a vector space, is the output also a vector space? सबसे पहला तो ये सवाल बनता है. Yeah. Is the transformation invertible? If I know the value in W, can I go back to V? Where did it come from? Yeah, the inverse problem. Can I solve that? How does it affect the bases, its dimension? हमने काफ़ी सारी एक vector space और vector space की चीज़ें discuss. Generating set होता है उसका, minimum generating set, maximum generating set, ये सारी चीज़ें. How are they affected by these vector, these operations, the transformations? So, since transformations are kind of functions, actually they are functions, but studied in the vector spaces, we'll revisit functions for a while. Yeah. So function क्या होता है? बहुत basic math है, right? तो क्या होता है? Okay. Input देंगे, output देगा. ठीक है. और is a relation है. Good. It's so there is some input, there is some output, and there is some rule or relation that's giving. Yeah. So the set theory based जो axiomatic definition है function की, today we look at that. होता है आपने की हो undergrad में या MS में, math में, but it's basically a story of three sets. Okay, what are the three sets? There is one set जिसको आप लोग input कह रहे हैं अभी. Yeah, let's see that is X. We call it domain. Yeah, then there is another set जिसको आप output कह रहे हैं, and we call it codomain. Yeah, we will come to that. कि range क्यों नहीं कह रहे इसको? ठीक है, there is a question in there. We will come to that. So we call it the codomain. Now, where is the function? ये तो establish अभी set हो रहा है ना कि input out. Where is the function? तीन sets की बात हो रही है. There is a third set. In the center. Yeah, spatially बता रहे हैं, right? This third set, ये बड़ा मजे का है. This is also a set. अब ये किस चीज़ का set है? किसका है? Rules का है. Okay. Later it will become rules, but in its very basic form, it's a set of ordered pairs. Ordered pairs समझते हैं ना? X, Y जिसमें X, Y is not the same as Y, X. इसको हम कहते हैं ordered pair. Okay, order also matters and it's a pair. So, what if I make a set of all possible ordered pairs between X and Y? ठीक है, क्या कितने बनेंगे? 4 ज़रब 3 है ना, तो 1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 ऑर्डर्ड है, तो से वो नहीं कर सकते, राइट? एंड वी अलाउ इट एक्स वाई. या सो यू कैन नॉट हैव 5 2 इन दिस जी. सो ये तीन सेट है. फंक्शन इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ दीज थ्री सेट्स. ओके, जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस है वो सेट थ्योरी से आती है. सेट थ्योरी को ना बड़ा मतलब बहुत मैथ्स में बहुत अहम रोल हासिल है. यानी सेट थ्योरी के बगैर अभी जो हमने पीछे किया है वेक्टर स्पेस, वो भी सेट से शुरू हुई थी ना. सेट था, उस पर कोई ऑपरेटर था और फिर कुछ एक्सियम थे. सो ऑल ऑफ इट गोज अराउंड सेट थ्योरी. सो वी कॉल दीज रिलेशंस और ग्राफ. सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल. बट जी इज जी अ फंक्शन? नॉट येट, अभी देखेंगे उसको, ठीक है. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल. यहाँ से कहानी अभी शुरू होनी है. या नाउ लेट्स सेट सम रूल्स टू गेट रिड ऑफ एनालिटिकली ट्रबलिंग पेयर्स. जी तो कह रहे हैं ना ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है, अभी फंक्शन नहीं है, अभी सेटअप है. सो एनालिटिकली ट्रबलिंग पेयर्स कौन से हो सकते हैं? कौन से पेयर हैं जो इसमें हमें अलाउ नहीं करने चाहिए? एक पे जाना चाहिए. वेरी गुड. कीप एट मोस्ट वन ऑफ ईच कलर. या सो कलर से मुराद 1 से ब्लू निकल रहे हैं, ऑरेंज निकल रहे हैं 3 से, और पिंक है या क्या है वो 2 से निकल रहे हैं. यस, कीप वन ऑफ ईच.
because if you keep 2 of 1 from 4 1 5 क्या होगा मसला? Ambiguity आ जाएगी. It can lead to mathematical absurdities. For example, if you keep both 1 4 and 1 5, then you can say u is equal to f1 is equal to 4 and v is equal to f1 is equal to 5, so 4 is equal to 5. मैथ तो सारा गया खत्म हो जाएगा, right? So it leads to absurdities. So definitely we cannot allow that, although that is in the ordered pairs. G में है वो, but we have to get rid of. दूसरा और कोई रूल है, ये काफ़ी है फिलहाल काफ़ी है कोई रूल ज़हन में आता है? ट्रबलिंग जिनको हम निकाल दें, पेयर्स ऐसे जो ओके ठीक है. सो कोई मसला नहीं, वो तो बस उसका इन्वर्स में मसला आएगा ना, लेकिन फंक्शन तो बन सकता है ना. सो फिर एक और है. ओके, बाय द वे ये जो मैंने अभी लिखा है ना कि यू कैन कीप एट मोस्ट, दिस इज़ व्हाट यू टीच इन अंडरग्रेड एज द वर्टिकल लाइन टेस्ट. वो जो लगाते हैं वो यही आप टेस्ट कर रहे होते हैं, या ओके. सेकेंड रूल इज कीप एट लीस्ट 1 ऑफ ईच कलर. ये ना हो कि चारों ही उड़ा दें आप 1 के सारे पेयर उड़ा दें, एक ज़रूर रखना है, या सो डोंट कीप मोर देन 1. तो ये तो फिर एग्जैक्टली 1 का आ रहा है. अच्छा, कीप एट लीस्ट 1 ऑफ ईच कलर. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? अगर ना हो उस पॉइंट पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? सो इफ़ वी गेट रीड ऑफ ऑल दी वंस 1 4 1 5 1 6, अब मुझे बताएं f1 क्या है, तो उधर वो या तो वही जो आप बता रहे डोमेन श्रिंक करनी पड़ेगी, या देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? यू कैन नॉट क्लेम दैट इट्स अ फंक्शन ऑन दिस डोमेन जब वो उस पर डिफाइन ही नहीं हो रहा, या तो या इफ़ यू वांट टू कीप दिस डोमेन, वो भी आइडिया ठीक है, आपके डोमेन ही छोटी है इसकी, या बट इफ़ यू वांट टू कीप दिस डोमेन, you claim that this is the domain, then you should give me its values. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, ठीक? सो इट लिमिट्स द यूटिलिटी ऑफ द मैपिंग. कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो जो दूसरा है वो ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो 4 = 5 हो जाता है. वी कैन नॉट डू दैट. मैथ तो प्रिसीजन का नाम है ना, एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वो फिर अपनी हरकतें करती है, या so your question might be, okay, even with these rules I can pick the connections in so many ways, right? इनमें से आपने पिक करने हैं. 2 रूल मैंने आपको बताए हैं, तो हर बंदा डिफरेंट पिक करेगा, वो रूल्स भी फॉलो हो रहे होंगे लेकिन कनेक्शंस उसके डिफरेंट होंगे, तो फिर फंक्शन क्या होगा? then each selection will be a function. It will be a different function, but it will be a function. As long as you meet these 2 rules, the mappings you decide are a function. ये होता है function. ठीक है? So what is a function then? A function basically is a subset of G satisfying 2 rules जो हमने बताए हैं, ठीक है? So that based on the domain and the codomain, we will call that a function, and all the mappings जो उन rules को follow करती हैं, they will be functions, right? So for example, अब आपने एक R1 चूज़ किया है कोई, ये उसका सबसेट है ना G का, agreed? क्योंकि G तो पूरे ही था ना ऐसे, तो it's a subset. So R1 is it a function? दोनों रूल्स पढ़ लें, ब्लू एंड रेड मैनेज हो रहे हैं, राइट? सो इट इज़ अ फंक्शन. अनदर फंक्शन, ये भी फंक्शन है, राइट? गुड. तो अगर मैं इधर एक लाइन और लगा दूं 2 से 5 पे, देन इज इट अ फंक्शन? देन इट वॉन्ट बी अ फंक्शन, राइट? एक रूल वायलेट हो जाएगा. इफ़ आई डिलीट दिस ऑरेंज लाइन, again the rule written in the red will be violated, so it won't be a function. Now we are ready to define a function formally. Yeah, जो मैंने आपको बताया बस ये easy है पढ़ना, right? There are 3 functions, 3 sets. लिखा ना ऊपर, it's a story of 3 sets.
there is a domain set, there is a codomain set, and there is a set of ordered pairs that follow the two rules. As long as you have that, you can call your R a set. So notice R is a subset. R here. Okay, pen. R is a subset of all possible ordered pairs, right? R has to satisfy it. कौन सा रूल है इनमें से? रूल 1 कौन सा और 2 कौन सा है? नीचे जो लिखा हुआ है मैथमेटिकल नोटेशन पढ़ लेते हैं ना, ये कोई सिंबल अगर इसमें क्लियर नहीं है तो बता देना. एलिमेंट होता है एग्जिस्ट फॉर एंड, ये साइन एंड का है. फॉर ऑल या फॉर ईच, दिस इज एग्जिस्ट, दिस इज एंड. वो मैथ की लैंग्वेज बड़ा अच्छा ये वो हो जाता है, कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट. तो पहला रूल को इनमें ब्लू कौन सा और रेड कौन सा है? पहला रूल 2 है, या एंड पहला यानी जो इसमें सेकेंड लाइन, या सो द एंड ऑपरेशन इज, या सो rule 1 is the last line. Yes, it is saying that if x1 in R and xz is in R, then y equals z, meaning x can appear only once. Ordered pair में सिर्फ एक दफ़ा appear होगा, अदर यानी y equals z तो यही मतलब हुआ कि फिर वो एक ही पेयर बनता है. Yeah, so that's rule 1. And of course we said for every x there exists a y. So x का कोई छोड़ना नहीं है आपने. Yeah, so then you might ask, okay, why is square root a function then? Right? Square root of 4 क्या होता है? 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है. प्लस लेते हैं. अच्छा, तो प्लस माइनस 2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? दो आउटपुट आ रही है ना. सो yes, it's not a function because it's not, but we could make it a function if we put some restrictions on it. Yes, which is, one restriction is that we say we'll take the principal root of x. और actually जो हम स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन करते हैं मैथ में प्रॉपरली, वो प्रिंसिपल रूट की बात कर रहा होता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल रूट क्या है? द पॉजिटिव रूट. सो इफ आई डिफाइन द फंक्शन लाइक दिस, this alone does not qualify for a function, but with this new condition it does. Yeah, I'm saying that तो रूल बता रहा हूँ ना मैं कि I will only pick those ordered pairs जिनमें जो y है वो पॉजिटिव वाला होगा. f(x) is y, so I'm उसके ऊपर मैं एक रूल लगा रहा हूँ ऑर्डर पेयर्स के ऊपर, राइट, कि मैं वो वाले y नहीं लूँगा जो नेगेटिव निकलेंगे. आई एम अलाउड, राइट, क्योंकि it's among the pairs, I can set my own rules. So as soon as you set that rule, yeah, then it's a fx square root of x with the understanding that we'll pick only those that have y greater or equal to 0, then it is a function. और कैसे कर सकते हैं? हाँ, विदाउट कंडीशन नहीं है, मैंने उसे लिख दिया. Without the satisfying the condition, it's not a function, right? वो देखना वर्टिकल टेस्ट फेल हो रहा है अगर इस तरह चल रहा है. Yeah, so is there another way we can make it a function? एक कंडीशन मैंने ये लगाई है, और कोई कंडीशन लगा सकते हैं? मॉड ले सकते हैं. मॉड आपके पास आप देखें, आप x और y पे कंडीशंस लगा सकते हैं, कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते. पेयर्स ले रहे हैं ना, वो तो फिर आप नया फंक्शन बना देंगे ना. लेस के लिए ले सकते. सो द रेड पार्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन अलोन, राइट, बट टुगेदर दे आर नॉट अ फंक्शन, वो फेल हो जाता है. सो yeah, you did that. This is your homework. Find out what this is. Okay, ये आपने फाइंड करना है. ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, पता है क्या है ये? हाँ, स्टोन्स हैं, और उस पर ये डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर रूट दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसको स्टडी करना इंटरेस्टिंग है. ओके, यू मे नाउ आस्क मी व्हाई इज y1 by x अ फंक्शन देन. इसमें क्या चीज़ फेल होती है? 0 पे अनडिफाइंड है, राइट. सो actually it's not, at least for real x,
x in real, it's not a function because it's not defined at f0. इनको ऐसे function को जो which are mostly defined but किसी एक member पे वो fail होते हैं, we call them partial functions. Yeah. So right, आप में से जो अभी आए हैं, I don't know आपको function क्या होता है पता है? क्या होता है? वो जो कराते हैं शादी का फंक्शन की बात नहीं आमिर को पूछेंगे आजकल तो कहेगा शादी का फंक्शन है तो क्या फंक्शन क्या होता है? Right. So I just told them it's a story of three sets. There is a domain set, there is a codomain set. You have all possible ordered pairs. Then you apply two rules to that. वो I motivated that क्यों चाहिए वो rules, but you can read it later. ये दो rules हैं. If you follow those and pick those ordered pairs which follow those, then each choice of ordered pairs will be a function. हर एक का अलग होगा, but that will be a function, right? So we quickly saw that. And now we were just answering a few questions. Why square root of function? It's not unless you put some constraint on it. That is, we will only pick those ordered pairs where the second value is positive, principal rule. या आप कहें we will only pick those ordered pairs with the second value is negative. कोई एक limit आप उसके ऊपर restriction लगानी पड़ेगी. Second question we had was why is 1 by x a function? It's not, for at least x की अगर domain real कह रहे हैं आप, positive integers के लिए तो ये है function, right? है ना, क्योंकि वहाँ तो ये मसला नहीं आएगा, लेकिन real के लिए नहीं है. Then we call it partial function, right? With the understanding कि the x is not equal to 0. इसीलिए इसकी definition में जो proper mathematician है, we would always write y equal to 1 by x, x not equal to 0. वो उसकी domain से उठा के बाहर निकाल रहे होते हैं इसको ठीक है, ताकि मसला ना बने, डिवीजन बाय ज़ीरो ना आ जाए. व्हाट इफ वी वुड लाइक टू वायलेट रूल 2? रूल 2, राइट, क्या था रूल 2? उसमें क्या आपका होगा एटलीस्ट वन, तो वी वांट टू अलाउ वन टू मैनी, या अगर वो करना चाहें तो फंक्शन होगा या नहीं होगा? You can do it, but then it won't be called a function. It will be called a relation, and relations are more general than function. In a way, functions can be kind of subset of the allowed relation thing, yeah. But relations are also a subset of the all the possible ordered pairs, but they don't have to follow your second rule. So for example, here L subset of G is a relation. ये रिलेशन क्या दिखा रही है? हाँ, लेकिन मैथमेटिकली इस रिलेशन को लिखना हो तो कोई पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें? थोड़ा ज़्यादा आगे जा सादा ही है, राइट? Pick those ordered pairs where the second variable is 3 times the first one, greater or equal to 3 times the first one, right? So this is a relation now. Yeah, relations can have one to many mappings. Fine, उनका output multiple होगा. क्या fail हो जाता है? Y is greater or equal to 3 times x. हाँ ठीक है, that is mistake here. ये वाला ना greater equal to होना चाहिए, बाकी ठीक है, चले ठीक, ये उड़ जाएगा. So but you can violate a rule, yeah, you won't get a function, you will get a relation which can be found by inequalities and those things. Just a quick digression, we will come to probability later, but the random variable is also a function, yeah. So the random variable takes the domain of probability space and applies, transfers it to a real value. For example, अगर आप rolling a die है, if you roll a die, your sample space or your probability space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. What does the random variable say? One definition could be that the random variable will take the same value that shows on the die.
4 आया है तो आपके रैंडम वेरिएबल 4 ले लेगा। दूसरी हो सकती है आप कहें कि वो स्क्वायर लेगा उसका, यू गेट पेड स्क्वायर ऑफ दैट अमाउंट। आप थ्रो करें अगर 6 आएगा तो आपको 36 रुपये मिलेंगे, राइट। सो इट्स अ रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो अ फंक्शन but it works on the probability space. Yeah, okay, we will look at it in more detail when we go to probability distribution. हाँ भाई ये था वो डोमेन और कोडोमेन वाला, या सॉरी डोमेन कोडोमेन और रेंज का मसला। isn't y called the range as some of you already said? yeah, so क्या फ़र्क है? इन पे मैप किया गया होता है, राइट। जो बकिया नहीं होते वो को, इसलिए वो ब्रॉडर कोडोमेन होती है। अब आपका अगला सवाल होगा व्हाट इज रेंज, वी ऑलरेडी मेंशन दैट द वंस दैट आर एक्चुअली मैप्ड। लेकिन इसके बाद एक आपका सवाल होना चाहिए, हाँ ये सवाल होना चाहिए ना, निकाल दें उनको सही है। आप कोडोमेन डिफाइन ही क्यों करते हैं, रेंज ही डिफाइन जब वो मैप ही नहीं होने, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर। ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी हमें एक्चुअल रेंज पता ही नहीं होती, उनकी कोडोमेन पता होती है, रेंज पता है। अब हम लोगों पे मजबूरी तो नहीं डाल सकते कि नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ, नहीं कर सकते ना। सेटा फंक्शंस हैं रिमन के, रिमान सेटा फंक्शंस जो हैं, कई फंक्शंस हैं जिनकी हमें पता ही नहीं होती, कई फंक्शन हैं जिनकी बड़ी मुश्किल होती है एक्चुअल रेंज। तो ये कह रहे हैं ना कि एक्चुअल मैपिंग वो क्या करते हैं, तो उसके लिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ so I just give an example here, like you see that if we say x is n and y in n but fx is 2x plus 1, then I know that the range is just a set of odd numbers, but it's easier and convenient for me to say कि y will take integers. yeah, इस case में it was also easy to say कि जो codomain है वो odd numbers है, but there are situations where it becomes very difficult. We want to keep the options open. It may be hard to find the range from a user perspective जिसने वो function use करना है, उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। उसको पता हो कि जो इसका आउटपुट आएगा वो रियल नंबर्स में होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर्स में होगा, ठीक, थोड़ी आसानी हो जाती है। या इफ़ यू कैन कैरेक्टराइज इट कन्वीनियंटली डू इट। या सो कोडोमेन हैज़ इट्स बेनिफिट्स। सो रेंज फिर क्या बनता है, इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। या doesn't have to be a proper subset, improper subset यानी पूरी की पूरी हो सकती है वो। या सो what if x is empty? empty set तो बहुत पसंद है मैथ वालों को राइट, उससे तो बहुत मसाइल हल होते हैं। सो क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। अच्छा है तो मेरे कुछ नहीं। जी क्या था, all ordered pairs, right, kind of Cartesian product of x and y. Cartesian product में तो नल नल आते हैं ना, empty empty आता है कभी किया दो सेट्स का Cartesian product, तो उसमें आते हैं ना empty empty, पहले वही लिखते हैं, तो फिर उसको कैसे मना कर सकते right. So this has theoretical importance, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर it is actually allowed and we call it an empty function. Okay, an empty function is basically it does nothing, it just from any set y for any set y there exists a function from empty set to y. otherwise ना ये जो हमारी definition है g की ये problematic हो जाती है। okay, so we need to allow all the ordered pairs and empty is an ordered pair अब वो so we call it the empty function of y. Okay, what if I map all elements of x to a single element in y? ये फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन भी होगा और एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है which we call the constant function. Okay, what if I map all elements of x to 0 if it is there? yeah, तो आप कर सकते हैं and it will be the zero function which is fx equals 0 for all x in x. ये नाम हम इसलिए ज़्यादा क्विकली देख रहे हैं क्योंकि ये यूज़ होते हैं आगे, या नल वेक्टर, नल फंक्शन, वो सारा कुछ। What if I map all elements of x back to themselves?
आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का रोल याद है, वेक्टर स्पेस वगैरह डिफाइन, बहुत अहम रोल होता है इसका। इन्वर्सेस की अंडरस्टैंडिंग में बड़ा अहम रोल होता है। चीज़ें आइडेंटिटी से ही इन्वर्स की समझ आती है हमें, जब उनको ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए, राइट, तो वो इन्वर्स होते हैं, ऐसे ही है ना। सो उसके लिए हमें आइडेंटिटी की समझ होनी चाहिए। ऑल्दो लगता है देखने में बड़ी आसान सी चीज़ लगती है, राइट, लेकिन आइडेंटिटी हर चीज़ की डिफरेंट है। एडिशन की जो है कुछ और है, मल्टीप्लिकेशन की कुछ और है, इस तरह वेक्टर स्पेसिस में अपनी अपनी निकल सकती हैं। सो यस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन एक्स, देन वी से दैट इट्स द आइडेंटिटी फंक्शन which maps x to, so domain and codomain are both x. Not only that, the pairing, ये ज़रूरी नहीं है कि domain और codomain होने से वो हो जाएगा, उससे आप 1 को 3 पे मैप कर रहे होते हैं, right? So it's that you have to map it back to itself. आप उससे मिक्स कर रहे हैं ना, जो वैल्यू जो 1 आने की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें ना। आइडेंटिटी का मकसद ये होता है कि वो सेम वैल्यू वापस आ जाए, या ओके, लाइक एफ एक्स इक्वल्स एक्स, सो द फंक्शन ऑफ f on x is often denoted by, ये हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, राइट, द फंक्शन दैट मैप्स थिंग्स बैक टू themselves, and we usually call them, इसका होगा idx, id for identity, right? Identity function on x is basically some fx that gives x for all x in x, yeah. Okay, you may ask, okay, what if I apply another function on the output? एक लगाया फिर दूसरा लगाया, इसको क्या कहते हैं? Composition, right? So you can, if a certain condition is met, and that this is called function composition. राउंड सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, या नेस्टेड से कर देते हैं, या सो कंडीशन क्या होगी? आई सेड इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, नहीं वो तो होंगी ना, वरना तो सेट नहीं, ये फंक्शन नहीं है ना, एफ फंक्शन होगा ना जी, उन्होंने वो तो मीट करनी है, पर इनकी कॉम्पोजिशन कराने के लिए फिर एडिशनल कंडीशन है, वरना उसके बगैर हो नहीं सकती। yes, so domain and codomain वो थोड़ा और आगे जा रहे हैं, राइट, है लिखते ऐसे हैं इसको, g o f x to z, और we also write it as g composed f x, they operate and nested वाली notation ये है. The condition is domain g should be equal to codomain of f, okay, otherwise you cannot define this, okay, check कर लेना, आपको समझ आ जाएगी उसका. So composition is not necessarily commutative, आपको पता है, f of g of x is not necessarily g of f of x, very well known कोई इस पे, जैसे just test it for some, फौरन आपको नज़र आ जाएगा, right? So we know it's not commutative. Left and right identity of composition. Now identity of composition अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया identity functions, या क्या आ रहा है ये? It's saying that f, if you assign, this is if you assign, let's say apply an identity function on x and then apply f on it, it's just like applying f on it, and it also holds the other way. This is called the right identity, this is called the left identity, because in the left identity first you apply fx and then you apply the identity. In both cases, if you get f, then idx and idy are the left and right identity functions. We will use these for defining inverses. Okay, उस वक्त काम आएगी. So अच्छा, it is associative under the condition that this one of them, if one of them exists, वही जो domain codomain की सारी conditions meet हो रही हो, ठीक है, and then if h of g of f exists, then h of g of f the other way will also exist and will be the same. Okay, थोड़ा सा आप टेस्ट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा वो.
right? Inverse, this is your inverse. If g of f of x is f of g of x is equal to x, ठीक है. If it, यानी इसको क्या होना चाहिए, इस पूरे फंक्शन को क्या होना चाहिए, नहीं वो तो है आइडेंटिटी फंक्शन, राइट. यही कह रहे हैं ना. तो इसको हम क्या कहेंगे, एक लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, एक राइट आइडेंटिटी होगा, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स बैक द x. या सो ओके, सिंस यू हैव सो मैनी क्वेश्चन, अब आपका 10वां सवाल. व्हाट इफ आई एम गिवन y इन y एंड आई वांट टू नो विच x इन x गॉट मी देयर. समझ आ रही. मैंने आपको बताया कि जी वैल्यू आंसर जो है f(x) इज 7, फाइंड x. Inverse problem. Yeah, so it's not always solvable, right? But yeah, हम पूछते हैं इस बार. Inverse doesn't always, function doesn't care about the inverse itself. Function की definition थी, rules थे, उसमें inverse का ख्याल नहीं रखा गया था. इसीलिए you have non-invertible functions and invertible functions. अब सवाल ये है कि invertible function कौन से rules का ख्याल रखता है, right? वो फिर हम आएंगे, आप सोच भी सकते हैं उस पर. इस केस में clearly many to one mapping which is allowed for a function cannot be allowed for an inverse function, क्योंकि अगर आप उल्टा देखेंगे इसको तो वो आप फंक्शन की डेफिनेशन बैकवर्ड्स वायलेट कर रहे होंगे. ऐसे ही है ना. एंड दैट मेक्स सेंस. एंड f inverse 6 is, nobody can tell you what is f inverse 6, right? So second thing, you will not be able to find x given if all y have not been mapped. अच्छा, y सारे मैप करना फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये दोनों फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी. लेकिन इफ़ यू वांट गो बैक तो फिर तो रिक्वायरमेंट बन जाएंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ मैं जा सकूं, दोनों तरफ आना जाना है, तो फिर दोनों तरफ फंक्शन की डेफिनेशन. यानी इन अ वे दिस बिकम्स द डोमेन नाउ. तो फिर डोमेन पे सारे रूल वो लगेंगे, डोमेन का भी कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल f inverse 7, आई कैनॉट टेल यू व्हाट इट इज़ फ्रॉम हियर फॉर दिस मैपिंग, इवन though this relation is a function, right? So here's the summary. Not a function. When you have one to many mapping, it leads to mathematical absurdities. हमने देखा था 4 = 5 हो जाता, कुछ भी कर ले आप, ठीक है. So not allowed. Any x in x not mapped, domain पूरी कवर होनी चाहिए, कोई मिसिंग ना हो. अगर मिसिंग होगा तो function becomes undefined, can be a partial function. अगर चंद हैं वो, अगर बहुत ज़्यादा हैं फिर partial कहना भी उसको ज़्यादती होगा, function ही नहीं है, right? Now what if we meet the requirements of a function, but so वो दोनों meet हो रही हैं, let's say जो दो conditions थी meet हो रही हैं, but with that we have many to one mappings. yeah? उसमें क्या मसला आएगा, it will be a function but इन्वर्स नहीं हो सकेगा. या इनमें कौन सा है मैनी टू वन, पहले वाले में एक नजर आ रही है, मैनी टू वन मैपिंग हुई है इसमें. नाउ इवन दो दिस इज अ फंक्शन, इट्स इन्वर्स won't exist, right? So if you want, okay, one to one. So what's the problem with that? It sounds good, right? But it doesn't say that, it just takes out many to one option. अच्छा, वन टू मैनी तो हमने पहले ही निकाल दिया क्योंकि फंक्शन है ना, तो वो तो गया. मैनी टू वन से आपने निकाल दिया, वन टू वन पे आ गए. ओके गुड, बट स्टिल इनवर्स में नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डजेंट से कि सारे कवर करने हैं वाई के, कुछ मिसिंग है इसमें भी. या देन लेट्स से वी से सारे वाई के कवर करने हैं, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर इनवर्स, बट इट अलोन इट्स नॉट इनफ क्योंकि उसको पहली कंडीशन भी चाहिए वन टू वन, राइट? दोनों होंगी फिर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है. ठीक है, इनके क्या नाम है? यस, सो ये आप पढ़ते हैं इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव. या अब ये आप रटा आपने लगाना है इनका. मैंने इनकी वो मीनिंग देखे थे लेकिन वो कहीं फ्रेंच से आए हुए हैं, थोड़ा सब कोई इतना मीनिंगफुल है नहीं वो, बस रटा ही लगाना पड़े. बाइजेक्टिव तो समझ आ जाता है, राइट? तो इनके जो इंग्लिश नेम है वो इतने मशहूर नहीं हुए. वन टू वन,
ऑन टू एंड इनटू है या 1 to 1 है, कुछ ऐसे है. हाँ, 1 to 1 और ऑन टू मतलब इनटू कुछ और है. पर वी कैन चेक कर ले, मुझे भी याद नहीं आता. पर मैं इनकी जो हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो नाम इतने पॉपुलर नहीं क्योंकि वो इतने क्लियर नहीं है कुछ. वो दिस इज एंड हमें तो ये भी क्लियर नहीं है ना. बहरहाल इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव. सॉरी, हाँ बता दो. सर्जेक्टिव ये है, फिर ये जनरल फंक्शन हो गया. इंजेक्टिव सेज, इंजेक्टिव की ये कंडीशन है बस. क्या कंडीशन लिखी है? ईच वाई हैज एट मोस्ट 1x. ठीक है, ये इंजेक्टिव है. ठीक. सर्जेक्टिव क्या है? एट लीस्ट 1x. ठीक है, समझ आ रही है? दोबारा देख लेना. मतलब एक कहता है कि एट मोस्ट 1 होना चाहिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ना वो एक से ज़्यादा हो सकता है ना एक से कम हो सकता है. एग्जैक्टली 1 रह जाएगा. या एंड दैट इज what we call each and every y has exactly 1x. जब exactly 1 होगा तो कोई y मिसिंग भी नहीं होगा. ऐसे ही है ना. और किसी y पे 2 आ भी नहीं रहे होंगे. ना many to 1 होगी, ना कोई x y मिसिंग होगा. So इसमें this function, the last one is bijective and it is invertible. Okay. So yeah, bijective when you दोनों प्रॉपर्टीज़ हों तो ये आपको बेसिक मैथ में वो कराया होता है. ये मैं इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशंस पे फिर हमने यूज़ करना है और उनको यूज़ करके फिर हमने आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, वो और चीज़ें करनी है असल में. तो ज़रा क्विक सा रिविजन है ये. कैन अ फंक्शन एफ टेक इन मोर देन वन वेरिएबल? Yes, it can, and we call that a multivariate function. The inputs are then called n tuples. Multiples वगैरह होते हैं तो वो n tuples हो गया. ठीक है. So yeah, it will be a function u to y. अभी तक हम x to y जा रहे थे where x was just one set. अब u will be actually a Cartesian product of many sets. So the domain itself is now based on the many functions. Cartesian product आपको अगर याद हो तो basically it's the set of all ordered pairs, right, of that. Pairs तो नहीं है, मतलब n tuples basically बनेंगे. So for example this guy, अब इसमें हो सकता है x1 in general जब हम ये लिखते हैं तो we are talking about x1 real numbers का set होता है normally. या x2 क्या होगा? Also real numbers का set, right? So x1 cross x2, because you can pick, इसमें 1 लें, उसमें 1 लें, इसमें 1 लें, उसमें 2 लें, सारे वो Cartesian product is now the domain, right? So it makes sense. और ये मैप उन सब को सिंगल रियल पे करता है, right? So y in this case is just real. U is real cross real, real cross real, and y is real, set of real numbers. तो अभी जो हमने देखा था वो मल्टी वेरिएट था. अब हम आउटपुट के लिहाज से मल्टी वैल्यूड, जो आउटपुट मल्टीपल देता हो. नाउ अभी तो हमने कहा है कि वो अलाउ नहीं करने, लेकिन देयर इज़ अ वे यू कैन डू दैट, इज़ टू हैव अ फंक्शन दैट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल फंक्शंस. ये आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर फंक्शंस में, राइट? लेकिन उनको हमने मिक्स नहीं किया हुआ, बड़े ध्यान से उनको अलग-अलग डायमेंशंस में डाल दिया होता है, राइट? आई जे के डायमेंशन में. तो या आप वेक्टर कैलकुलस वगैरह में या बेसिक कैलकुलस 2 में पढ़ते हैं. आवर फ्रेंड हियर इज आल्सो अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन y इक्वल्स ax प्लस b. देखिए ना, वो x की मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहा है और y की पूरा वेक्टर दे रहा है ना आपको. तो दैट इज़ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन. लाइक दिस वन इज़ 3 डायमेंशन में. ये इसका जो वेक्टर का टिप है, इट्स फॉर्मिंग कोसाइन, साइन एंड स्ट्रेट लाइन अराउंड. प्रोजेक्शंस इसकी देखेंगे आप तो ये. सो इन समरी, डोमेन, व्हाट इज डोमेन? सेट हुज एलिमेंट्स शुड बी बेसिकली जिसको आप इनपुट कहते हैं. या देन कोडोमेन, द पॉसिबल आउटपुट्स, all possible output जो है. Range, the actual values that are mapped. Yeah,
image is another name for range. Okay, this is more commonly used in linear transformation, this name image. So image of किसी एक small x का image होगा, whatever value is paired with it, वो उसका image होगा. लेकिन पूरे x का image क्या होगा? Range होगी. Agreed? Right? Pre-image. Right? Yeah. So pre-image of y is the set of all x that map to y. क्योंकि फंक्शन तो कहते हैं ना मैनी टू वन हो सकती है ना, तो फिर किसी एक y का प्री इमेज 3 वैल्यूज़ भी हो सकती है, राइट? हाँ, अगर वो बाइजेक्टिव है फिर 1 की 1 ही होगी. या सो नोटेशन, 3 नोटेशंस कॉमनली यूज होती हैं. एफ एक्स टू वाई एक ये है, y इक्वल टू एफ एक्स दी मोस्ट कॉमन बेसिक वन, एंड ये भी मज़े की है x मैप्स टू y. ओके, सो अगेन जस्ट आप बाद में इसको देख लेना, ये वही ग्राफिकली दिखा रहा है रेंज, कोडोमेन और प्री इमेज वगैरह. जी, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, या दोनों फंक्शन है या दोनों नहीं है? पहला वाला क्या हो गया, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यार. राइट वाला नहीं है, कौन सा रूल फेल हो रहा है? राइट वाले में दोनों ही फेल हो रहे हैं ना, डोमेन भी पूरी कवर नहीं कर रहा और 1 to many कर रहा है. ये वाला मैनी टू वन कर रहा है तो ये इन्वर्टेबल नहीं है. लेफ्ट वाला फंक्शन है पर इन्वर्टेबल है, राइट वाला फंक्शन ही नहीं है. या गुड. इन्वर्टेबल 7 से 3 पे जाएंगे या 6 पे, वही एब्सर्डिटीज आ जाएंगी ना. राइट वाला, हाँ हाँ ये वाला. सो यू वांट टू गो बैक फ्रॉम हियर. सो व्हाट इज एफ इनवर्स 6? 3. एफ इनवर्स 7 इज 3. एफ इनवर्स 3 इज 9. हाँ, इन्वर्ट आप इसको कर सकते हैं यूनिकली, बट it doesn't start off as a function, right? So फिर हम उसके इन्वर्स की नॉर्मली बात नहीं करते, but yes वो ठीक है, you will be able to find those. अच्छा, another example, very quick one. डोमेन x है, रेंज को डोमेन y है, रेंज क्या है 4 and 5. image of 1 is 5, image of 2 is 4. just to आपको बताने के लिए, image of x is the range, yes, which is 4 5. pre-image of 4 is 1, pre-image of 5 is 1 3, pre-image of 6 is empty, pre-image of 7 is empty, pre-image of the range is domain. ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान है, राइट. सो अनदर क्विक एग्जांपल, ये इसकी पेयरिंग बनी है, डोमेन इसकी है -1 0 1 2, को डोमेन इज 1 2 3 4 5, रेंज इज 1 2 3 5. या then functions can be linear or non-linear, right? क्या फ़र्क होता है? In algebra, polynomials of degree 0 or 1. 0 degree मतलब वो constant function है ना, f(x) equals 6. That's a 0 degree polynomial. 0 degree हो या 1 degree हो, algebra के लिहाज से it's a linear function. Geometry के लिहाज से it's a graphs a line or part of a line. Okay. बाकी फिर नॉन मीन्स एनीथिंग एल्स, राइट? इट्स काइंड ऑफ इल डिफाइंड. लीनियर इज डिफाइंड, नॉन लीनियर इज इल डिफाइंड, क्योंकि आप सिंपली कह रहे हैं इट्स द एब्सेंस ऑफ समथिंग, ये नहीं कह रहे क्या चाहिए. तो फिर उसमें फिर आगे हम कई दफ़ा बनाते हैं बाई लीनियर या इस तरह की चीज़ें. स्टिल एनीथिंग अदर दैन लीनियर इज नॉन लीनियर. सो नाउ वी आर रेडी टू रिटर्न टू, करना क्या था हमने, ये किधर निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन, which was a function on applied on vector space. यानी उसकी डोमेन क्या है, वेक्टर स्पेस. ठीक है, ये नहीं पता कि उसकी को डोमेन भी वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, राइट? सो वो अब हमने देखना है. सो these were the questions we were asking ourselves. So let's define transformation now. We will talk about it like this: f v to w. Notice I am saying v is a वेक्टर स्पेस, W को अभी मैंने ओपन छोड़ा है,
ठीक है. So it would be good if the output is also a vector space. It will help us. ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट वेक्टर स्पेस हो, बट इफ़ इट इज़ दैट इज़ इट मेंटेन्स. दीदी ना कितनी मेहनत से हमने वो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जो कि क्या थी बेसिकली सुपर पोजिशन है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यानी सम्ड एंड स्केल्ड एंड सम्ड वर्जन्स की should be inside the space. यही था ना मेन उसका आइडिया. So if this transformation could preserve these properties, preserve this structure, then we will call it linear and it will help us. आप कहें नहीं मैं नहीं करनी, फाइन, ऐसे नॉन लीनियर है ना, मैनीफोल्ड्स वगैरह उस तरह की और चीज़ें हैं, इट्स फाइन, बट हमारा काम बहरहाल इससे हो जाता है काफ़ी हद तक. So a mapping that preserves the structure of a vector space, that is the transform version also is a vector space. Yeah. So now I am writing, इसका मैंने symbol change कर दिया, वो general था f, ये अब phi है, v to w where both v and w are vectors spaces. Yeah. So then अब उसके requirement वही है आ जाके linearity वाली, right, superposition wali, that it should allow phi x plus y should be the same as phi x plus phi y, phi lambda x should be the same as lambda phi x. This is summing and scaling. आ जाके वही linear combinations की वही characteristic थी जो led to the definition of vector spaces in the first place. यही axioms थे ना उसके अंदर, मतलब और भी थे कुछ लेकिन ये वाले साथ. So for vector spaces v and w, a mapping phi v to w is called a linear mapping or vector space homomorphism. ये लफ्ज़ और linear transformation दोनों यूज़ होते हैं. आगे फिर हम ये जो vector space homomorphism है ये ड्रॉप कर देंगे, vector space सिर्फ इसको कहेंगे homomorphism. ठीक है, और linear transformation सेम मीनिंग है इनका. ठीक है, तो कभी ये यूज़ होगा कभी ये. होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म क्या होता है, मॉर्फ क्या होता है, चेंज होना, टू चेंज इनटू समथिंग. होमो इन द सेम वे, सो टू मॉर्फ बट कीप इट द सेम, मतलब चेंज इट बट कीप इट अ वेक्टर स्पेस, दैट इज होमोमॉर्फिज्म. या और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. या सो अब इसमें वो जो दो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो इकट्ठी लिख दी गई हैं बेसिकली, ऐसा ही है ना. स्केलिंग एंड addition have been included, basically meaning it's allowing superposition. जो आप उसमें पढ़ते हैं लीनियर सिस्टम जो पढ़ते हैं, जी हाँ, लीनियर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं ना, जो LTI पढ़ते हैं या इस तरह के, उसमें टाइम इनवेरियंस तो बाद लीनियरिटी है वो यही वाली है, सुपरपोजिशन ही. हाँ. So we can show that phi x x1 to, ये आप लिखते हैं ना कई दफ़ा इस तरह, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको वेक्टर्स में लिख लेते हैं ना, तो यू कैन शो दैट इट्स एक्चुअली अ होमोमॉर्फिज्म. आपने वो प्लस चीज़ को ऐसे लिख दिया x1 x2. सो बेसिकली यू कैन शो दैट इट अलाउज बोथ, वो जो उसकी सुपरपोजिशन है जो हमने पीछे कंडीशन लिखी है, इट अलाउज दैट. सो अच्छा, now we want to categorize them. अब चूंकि हम ऑलरेडी फंक्शन का कर चुके हैं तो अब हमें ये मुश्किल इतना नहीं लगना चाहिए. अभी किया ना हमने, क्या था, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव. तो ये भी वही है, देख लें, कोई इसमें स्पेशल नहीं है. फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन वी, फाई एक्स इक्वल्स फाई वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स वाई, मीनिंग कि ये 1 to 1 है, 1 to सॉरी मैनी टू 1 नहीं, 1 to मैनी तो वैसे ही अलाउड नहीं है ना फंक्शन के लिए, तो इट्स 1 to 1 है. नॉट ओनली दैट बट द होल थिंग इज कवर्ड, राइट. सो इफ दैट इज द केस देन इट इज सब्जेक्टिव, एंड बाइजेक्टिव इज इफ इट इज, अगेन क्या फ़ायदा है, क्यों चाहिए था ये बाइजेक्टिव वहाँ पे, इन्वर्स के लिए. तो यहाँ भी हमें इन्वर्स चाहिए होगा असल में, इसलिए हम ये कर रहे हैं. Yeah. So
linear transformation are invertible only if they are bijective. Yeah, and so you can show that if phi is surjective, it can be reached, yada yada yada, and चूँकि हम वो function में already कर चुके हैं तो we don't need to इसका inverse exist करेगा, we represent it let's say with psi, so the psi composed or together with phi x leads to x, and it exists if this homomorphism is a bijective one. Okay, now that alone functions के लिए था, अभी हमें कुछ और भी चाहिए, इसमें additional कुछ understandings चाहिए. Homomorphism is just linear transformation, वो तो हो गया. Homomorphism की classifications further क्या है? Isomorphism, endomorphism, automorphism. ठीक है, तो ये क्या है? Isomorphism, when you have a homomorphism which is linear and bijective. ठीक है, so because it's linear it's homomorphism. ठीक है, because it's bijective it's invertible. So simply an isomorphism is an invertible homomorphism. ठीक है, अगर आप आज सरवासा सार घूम जाए तो कोई मसला नहीं, सिंपल है जब आप एनालिटिकली करेंगे. Endomorphism is linear, so it is a homomorphism. Linearity require होती है बस homomorphism के लिए. एंड क्या कंडीशन है इसमें स्पेशल? इसकी डोमेन और को डोमेन सेम है. इट सेट कम्स बैक टू काइंड ऑफ क्लोज्ड बैक सेट में वो वापस आ जाता है. या ऑटोमॉर्फिज्म लीनियर एंड बाइजेक्टिव. अब आप मुझे लिंक बता सकते हैं बिटवीन ऑटोमॉर्फिज्म एंड एंडोमॉर्फिज्म? नहीं नहीं, एंडो और ऑटो का रिलेशन था. सो ठीक है, वो तो नज़र आ रहा है ना, अब आगे जाए ना. जैसे मैंने कहा कि आइसोमॉर्फिज्म इज एन इन्वर्टेबल homomorphism, so can I say that automorphism is an invertible endomorphism? समझ आ गई कि नहीं आई? यही हो रहा है ना. क्या हो गया? अब वो तो है, पर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन इन्वर्टेबल एंडोमॉर्फिज्म. अग्रीड? इन्वर्टिबिलिटी कौन डाल रहा है उसमें? बाइजेक्शन डाल रही है ना. तो इधर बाइजेक्शन ने, लिनियरिटी तो है, तो ये तीनों ही होमोमॉर्फिज्म्स है ना, वो तो मसला नहीं है. यहाँ बाइजेक्शन ने डाली इन्वर्टिबिलिटी, तो ये जनरल होमोमॉर्फिज्म को जब इन्वर्टेबल हो तो हम उसे कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म. एक स्पेशल होमोमॉर्फिज्म है विच इज़ वी टू वी, उसको हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म, जिसका एज फंक्शंस इन्वर्टेबल होना ज़रूरी नहीं है. हाँ, अगर हो तो हम उसे कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म. या एंड वी डिफाइन वही जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हमने डिफाइन किया था, तो विल डिफाइन आई डी वी टू वी एज एक्स टू एक्स एज द आइडेंटिटी मैपिंग और आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि वो वापस अपने पास आ रहा है. या so I already mentioned this. Homomorphism is another name for linear transformation. A homomorphism is a structured preserving mapping between algebraic objects of the same type. ये नाम ज़्यादा जनरल है, हमने अभी इसको बात की है, इसीलिए इसका फुल नाम क्या जो हम पढ़ें, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म. या टोपोलॉजी में इसको क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म को होम्योमॉर्फिज्म के, होम्योपैथी में चल जाता है थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाता है उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा और भी फ़र्क है थोड़े से. लेकिन है होमोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर, वो तो हो गया. इन जनरल इज दिस वन, सो वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस होगा तो दैट इज़ अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फ. इन दिस कोर्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसलिए हम वेक्टर स्पेस ड्रॉप कर देंगे, विल जस्ट कॉल इट होमोमॉर्फिज्म. Invertible homomorphism is isomorphism, endomorphism is a morphism from a material object to itself, and invertible endomorphism is an automorphism. ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि हर एक एग्जाम्पल एक तलाश करें और उसको देखें.
वाई आर वी इंटरेस्टेड, इतना हम जो ये मॉर्फिज्म्स लगे हुए हैं. When we have isomorphisms, for example, we can, they preserve these properties of the vector space, right, and we can invert them. So analytically they become easier to work with, right, and we often say, okay, these two objects are the same up to an isomorphism. मतलब ये कि इनके ऊपर जो जो मैंने लॉज और थ्योरम्स लगाए हैं ना, वो इन जनरल वो दोनों पे लग रहे होंगे. आप जब शो कर देते हैं ना कि दे आर एन आइसोमॉर्फिज्म, तो आपके बहुत सी चीज़ें दोबारा से नहीं करनी पड़ती हैं आपको. रूल्स, रिलेशंस, थ्योरम्स, लेमाज, वो सारा अक्सर वो सारा होल्ड करता है. ठीक है. सो मैथमेटिकली एनालिटिकली इट्स वेरी यूजफुल. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम. वापस पिछले लेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं. डायमेंशन. डायमेंशन भी याद है? डायमेंशन क्या होती है? यस, तो बेसिस कहते हैं जो, तो द नंबर ऑफ बेसिस. यस, वो जो बेसिस जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, द मिनिमम नंबर जो होता है, या तो फिर उसके नंबर को हम कितने हैं उसके अंदर, यानी उसकी जो बेसिस अगर आप बनाएं ना, बेसिस वेक्टर का जो सेट बनाएंगे उसमें कितने वेक्टर्स हैं. जैसे R2 के लिए बेसिस 2 चाहिए होते हैं. आपकी मर्जी है 1 0 0 1 रखना है या कोई और रख लें, 1 -1 और -1 1 या कुछ और रख लें. या बट -1 1 तो है उसका डिपेंडेंट हो जाएगा, 1 0 कर दें. ठीक. सो होंगे 2 ही, ऐसे ही ना. ये डायमेंशन थी. So there is a very interesting result saying that V to W finite dimension vector space V and W are isomorphic, meaning there exists an isomorphic relation between them, यानी वो एक फंक्शन उनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ उनकी डायमेंशंस बराबर हो. ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है. तो इसका मतलब है कि अगर आप ये शो कर दें कि दो वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन सेम है, तो देयर विल ऑलवेज बी एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन देम. आप निकाल सकते हैं. राइट. दैट्स अ वेरी पावरफुल रिजल्ट दैट वी विल यूज लेटर. कंपोजिशन एंड इनवर्स. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है. इफ फाइज दोनों लीनियर हैं तो फिर कंपोजिशन भी लीनियर होगी. ओके, यूजफुल रिजल्ट. इफ फाई V to W is isomorphism, then phi is an isomorphism too. Okay, क्योंकि बाइजेक्टिव था ना, याद आ रहा है? बाइजेक्टिव में सीधी सीधी एक से एक पे जाते हैं आप, तो फिर उल्टा भी वो भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, एग्जिस्ट भी करेगा और आइसोमॉर्फिज्म भी होगा. एडिंग एंड स्केलिंग, that's interesting too. If these two are linear, then their sum and their scale are also linear. So these will come in handy when we work with matrices which will be isomorphisms. So from transformations to matrices, ये मैं थोड़ा सा बता के फिर we'll stop here. ये अब हम इसको आगे लेके चलेंगे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. द लिंक बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आवर फ्रेंड्स दी मेट्रिसेस. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज मेट्रिसेस. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है ना, वो आप एक मैट्रिक्स से शो कर सकते हैं. यू कैन एम्बॉडी इट इन ए matrix. For every linear transformation there exists a matrix that can carry out the same operation. That's very useful. Yeah. So अब आपके लिए होमवर्क किया है कि कैन मैट्रिसेस आल्सो रिप्रेजेंट नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ है, कर लेते हैं. ठीक है. देयर आर सम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिसेस, पर एटलीस्ट लीनियर तो सारी होती हैं. हमारा इस वक्त मकसद हुआ है. बट इट्स ऑलवेज गुड टू, देखिए, दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड लर्न टू आस्क एंड देन फाइंड द आंसर्स टू देम. ठीक है. अगर ये सवाल आपके में नहीं उठ रहे या नहीं उठते तो उसका कोई मसला है. यू शुड ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हर एक की एक लीनियर मैट्रिसेस, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैट्रिक्स होता है, तो क्या सारे मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं? कन्वर्स है कि नहीं है? तो एक्चुअली नहीं है. देयर आर मैट्रिसेस दैट रिप्रेजेंट नॉन लीनियर, सारी नहीं,
बड़ी स्पेसिफिक सी बट हैं सही, वो फिर आपका होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड इट. आई थिंक वी कैन, I'll just mention this and then we can stop. Yeah, ये तो मैंने already बता दिया ना, right? So the transformation T from to Rn to, अच्छा नहीं चले, या Rn मैं VW ढूंढ रहा, Rn to Rm can be represented by an m by n matrix A. तो अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस पे काम करने की बजाय यू कैन वर्क विद सिंपल, और ये तो हम कर रहे होते हैं Ax इक्वल B वगैरह, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं ना. सो next time we will see that actually you can find this transformation matrix using the basis of the domain and the range. It is not unique. क्यों नहीं unique होगा? क्योंकि bases unique नहीं होते. However, each one will represent the same transformation. ठीक है, जैसे bases भी same ही span करते हैं. नहीं, अगर एक set of bases है तो उनका 2 times भी set of bases है, right? पर जो उनकी space है वो एक ही बनती है. इसी तरह although A may not be unique, but the action of each A will be the same. Yeah, each A which is like this. Yeah, so it's dimensional fixed वगैरह. These are some linear transformations of vectors. ये आपके पास original data है. These are vectors, original vectors. If you multiply that with this, it's actually a rotation by 45 degrees. If you multiply by that, it's actually a stretching of the vectors. That one is a shearing of the vectors. Yeah, each of these operation ये graphics में बहुत use होता है आपकी सारा कुछ. चलें यहाँ से फिर next time शुरू कर लेंगे हम. Yeah, we will do that next time. Any questions? दो दफ़ा नहीं कहा था.